Hello dear friends, welcome in science class. I hope you all are safe and doing well at your places. So students, in the previous session, we have started with the chapter number 3 and we have discussed the physical properties of matters and non-matters. Okay, in today's session, we will start with the chemical properties of matters and non-matters. Okay, we will differentiate matters and non-matters on the basis of their chemical properties. Before starting the today's session, I would like to share the learning outcomes that you are going to achieve after completing today's topic. You will be able to define amphoteric oxides. You will be able to write chemical reactions of metals with oxygen, non-metals also. Name the metals that do not react with the oxygen, means that are least reactive. Explain the process of anodizing with its importance and write examples of neutral oxides, okay, that are non-metallic oxides, some non-metallic oxides that are neutral. Okay, so let's start with the today's session with the chemical properties of metals and non-metals. First, we will do the reaction of metals with oxygen. How does metals react with oxygen? Okay. Now what happens when metals react with the oxygen? Metals when react with oxygen, they will form metallic oxide or metal oxide. Okay, they will form metal oxide. Now the different metals, they will show reaction with the oxygen with different speed. ठीक है, अलग अलग स्पीड के साथ या उनका रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है दैट इज डिफरेंट, और यू कैन से देयर रिएक्टिविटीज टुवर्ड्स ऑक्सीजन इज डिफरेंट. ओके, फॉर एग्जांपल द फर्स्ट एग्जांपल इज ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम. कुछ मेटल्स जो हैं बेटे दैट शोज विग्रस रिएक्शन विद द ऑक्सीजन, वो बहुत जल्दी फास्ट रिएक्ट कर जाते हैं. ठीक है, इवन एट द रूम टेम्परेचर आप उसको बर्न भी नहीं करोगे, वो सिंपली क्या कर जाएंगे, रिएक्ट कर जाएंगे विद द ऑक्सीजन. सो सोडियम क्या करता है, इट रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन एंड इट विल फॉर्म सोडियम ऑक्साइड. ठीक है, Na2O, दिस इज सोडियम ऑक्साइड. इफ वी विल बैलेंस इट तो यहाँ पे क्या आएगा, 2. नाउ द 2 2s are 4, सोडियम इज 4. And potassium also, potassium when reacts with oxygen, it will form potassium oxide. Okay, and this reaction is so vigorous, ये इतना fast reaction होता है कि even this sodium and potassium they catches fire. इसी वजह से हम क्या करते हैं, इनको हमेशा स्टोर करके रखते हैं अंडर केरोसिन ऑयल. Okay, so these are the metals that show very vigorous reaction with oxygen. The second example is of magnesium. अब मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम के ऊपर क्या होता है, मैग्नीशियम के ऊपर प्रोटेक्टिव कोटिंग आ जाती है. ठीक है, वो भी आ जाती है और इट ऑल्सो बर्न्स विद द ऑक्सीजन. ये ऑक्सीजन के साथ बर्न भी कर जाता है. तो क्या होगा जब मैग्नीशियम बर्न करेगा, ओके, with oxygen it will form magnesium oxide. okay, magnesium oxide बनेगा and we know that magnesium oxide is white powder. white कलर का पाउडर रह जाता है ना नीचे, है ना, रेजिड्यू जो रह जाता है that is of white powder. so that is magnesium oxide. और मैग्नीशियम बर्न करता है with the dazzling white flame. okay, the another example is of aluminium. अब एल्यूमिनियम क्या करता है, एल्यूमिनियम बर्न करता है, नो, एल्यूमिनियम बर्न नहीं करता है बट इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन. बेटे आपको बैलेंस करनी होती हैं रिएक्शंस. यहाँ ऑक्सीजन इज 2 एंड द Mg इज 2. ओके, नाउ द एल्यूमिनियम ये बर्न तो नहीं करता है, पर इसमें क्या होता है, व्हेन इट कंबाइंस विद द ऑक्सीजन ये एल्यूमिनियम के ऊपर प्रोटेक्टिव कोटिंग बना लेता है, दैट इज ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड. ओके, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव कोटिंग कर लेता है, प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, बर्न नहीं करता है. ठीक है, इट डज नॉट बर्न नहीं करेगा, पर क्या होगा, इसके ऊपर प्रोटेक्टिव कोटिंग बन जाएगी एंड दिस प्रोटेक्टिव लेयर प्रिवेंट्स द फर्दर रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम. वी हैव स्टडीड इन फर्स्ट चैप्टर.
ओके, इन द करोजन वी हैव स्टडीड कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर क्या करती है, इट प्रोटेक्ट द जो उसके नीचे अंडरनीथ मेटल होती है एल्यूमिनियम, उसको वो फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करने देता है। ओके, सो इसका मतलब सोडियम और पोटाशियम आपके ज़्यादा विग्रस रिएक्शन शो करते हैं, मैग्नीशियम थोड़ा कम करता है, एल्यूमिनियम उससे थोड़ा कम करता है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमारी मेटल है, फॉर एग्जाम्पल वी आर डूइंग एग्जाम्पल्स ओनली। द नेक्स्ट इज ऑफ एग्जाम्पल ऑफ आयरन, ठीक है, Fe। अब आयरन ऑल्सो डज नॉट बर्न इन एयर, ये भी क्या करता है, डज नॉट बर्न इन एयर, बर्न तो नहीं करता है, पर क्या होता है, इट बिकम रेड हॉट, ये सिर्फ ग्लो करता है विद ब्राइट लाइट, जब आप इसको बर्न करते हो रेड हॉट हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, बर्न नहीं करता है। बट उल्टा किसके साथ है, आयरन फाइलिंग्स के साथ। अगर आप आयरन फाइलिंग्स लेते हो एंड स्प्रिंकल देम ऑन द फ्लेम ऑफ अ बर्नर, ठीक है, देन दे विल विग्रसली कैचेस फायर, ठीक है, तो वो बर्न कर जाती हैं और दे विल कैच फायर। ओके, आयरन फाइलिंग्स जल्दी आग पकड़ लेते हैं, भाई सरफेस एरिया, ठीक है ना, आपने उनको छोटा छोटा बना दिया है ना, तो सरफेस एरिया क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, सो दैट्स वाई दे कैचेस फायर इजीली। सेम किसके साथ होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी विल टेक द, एक तरफ आपने वुड ले लिया और एक तरफ आपने उसी का सॉ डस्ट ले लिया है, जो बुरा होता है ना, बुरादा होता है वुड का, उसी को आपने, तो कौन जल्दी आग पकड़ेगा, ऑब्वियसली सॉ डस्ट, ठीक है, यहाँ पे सरफेस एरिया का कंसेप्ट आ जाता है, ठीक है। तो आयरन फाइलिंग्स जो हैं दे विल कैचेस फायर व्हेन वी स्प्रिंकल देम ऑन द फ्लेम ऑफ अ बर्नर, बट द आयरन डज नॉट बर्न इन एयर, ये बर्न नहीं करता है। ओके, द नेक्स्ट इज कॉपर। अब कॉपर क्या करता है, कॉपर ऑल्सो डज नॉट बर्न इन एयर, ठीक है, ये भी बर्न नहीं करता है, पर क्या करेगा ये, इट ऑल्सो फॉर्म्स ब्लैक कलर कोटिंग, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, इट विल फॉर्म ब्लैक कलर कोटिंग ऑफ कॉपर ऑक्साइड, कॉपर के ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है, दैट इज ऑफ कॉपर ऑक्साइड, इट इज कॉपर 2 ऑक्साइड। यहां पर कॉपर की कौन सी वैलेंसी है, Cu2 पॉजिटिव, ओके, कॉपर 2 ऑक्साइड, और वी कैन से क्यूप्रिक ऑक्साइड, एंड इट इज ब्लैक कलर्ड, ठीक है, ब्लैक कलर्ड की कोटिंग आ जाती है ऑन द कॉपर आर्टिकल्स। एंड यू कैन ऑब्जर्व हेयर ऑल्सो, है ना, दिस इज द कॉपर वायर, ये कॉपर वायर है, अगर ये बिल्कुल न्यू होती तो कैसा कलर होना था इसका, ठीक है, एकदम से शाइनिंग कॉपरिश ब्राउन, अब इसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग आ गई है, दैट मीन्स इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। ओके, एंड द नेक्स्ट इज, सिक्स्थ वन इज सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, ठीक है, दे डू नॉट कंबाइन विद ऑक्सीजन, ठीक है, इवन एट हाई टेम्परेचर दे डू नॉट कंबाइन विद ऑक्सीजन। सो इन दिस वे हमने क्या किया, वी हैव अरेंज्ड देम, और हमने उनको स्टडी ही किया अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटीज टूवर्ड्स ऑक्सीजन, मतलब पोटाशियम और सोडियम की ज़्यादा थी, मैग्नीशियम की उससे कम, एल्यूमिनियम की उससे कम, आयरन की उससे कम थी, देन द कॉपर एंड एट द लास्ट सिल्वर, और ये तो बिल्कुल ही लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है, दे डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है, as we all know that metal oxides are basic in nature, we have studied this in chapter 2, ठीक है, ये हमने चैप्टर 2 में किया था, when the metal oxides, फॉर एग्जाम्पल हमने कौन सा एग्जाम्पल किया था, ऑफ कॉपर ऑक्साइड, when the copper oxide get mixed with HCl, ठीक है, क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट और वाटर बनाता है, तो दिस शोज दैट दिस मेटेलिक ऑक्साइड्स, ये शो करता है कि मेटेलिक ऑक्साइड्स कैसे हैं, बेसिक इन नेचर हैं, दैट आर बेसिक इन नेचर। और आप कैसे शो कर सकते हो, बाय डिजॉल्विंग द मेटल ऑक्साइड्स इन वाटर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डिजॉल्व करते हो, सो व्हाट इट विल फॉर्म, क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है, एंड इट विल टर्न
red litmus to blue. So this will also indicates that metal oxides are basic in nature. ठीक है, metal oxides कैसे हैं? Basic in nature है. Most of the metal oxides are basic in nature, but few exceptions are there. ठीक है, for example, aluminium oxide, that is Al2O3, and zinc oxide, ZnO. These two metal oxides, these are amphoteric oxides. क्या है ये? Amphoteric oxides है. एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. अब देखते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं. सो व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स? दोज मेटल ऑक्साइड्स दैट रिएक्ट विद एसिड्स एज वेल एज बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. अदरवाइज क्या होता है, मेटल ऑक्साइड सिर्फ एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और वो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं. बट कुछ मेटल ऑक्साइड्स जो हैं वो दोनों के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, एसिड एज वेल एज बेस, एंड दे विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम ऑक्साइड. अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या करता है? Al2O3. ठीक है, व्हेन इट रिएक्ट्स विद एसिड, फॉर एग्जांपल HCl के साथ जब ये रिएक्ट करेगा, इट विल फॉर्म सॉल्ट, दैट इज AlCl3 प्लस वाटर, दैट इज H2O. ओके, नाउ देयर इज नीड टू बैलेंस इट. अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा. इधर एल्यूमिनियम इज 2, नाउ हियर एल्यूमिनियम 2 हो गया. नाउ अब आप Cl को करेंगे, 3 2s are 6, सो हियर वी विल पुट 6. अब क्या हो गया आपके पास? हाइड्रोजन इज 6, तो आप यहाँ 3 लगा देंगे, 3 2s are 6, एंड ऑक्सीजन आपके इधर 3 है, तो इधर ऑक्सीजन भी 3. ओके, तो दिस विल, अब यहाँ क्या हुआ बेटे? ये दिस इज एसिड एंड हेयर इट बिहेव्स एज बेस. ओके, नाउ इट कैन ऑल्सो रिएक्ट विद द बेस. अब ये बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल NaOH. अब ये यहाँ क्या बनाएगा? सोडियम एल्यूमिनेट, NaAlO2. ठीक है, ये बनाएगा सोडियम एल्यूमिनेट. वी हैव डिस्कस्ड इन चैप्टर 2 ऑल्सो कि क्या बनाएंगे, ये कुछ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स होते हैं. Here the aluminate is the ion, negative ion. Okay, and साथ में क्या बनाएगा ये? Water, that is H2O. ठीक है, तो अब आप इसको बैलेंस करोगे. Aluminium is 2, so we will put here 2. Now the sodium become 2, it is 2. ठीक है, अब देखो आपके ऑक्सीजन कितने हैं? 2 2s are 4, 4 plus 1 5. And here 3 plus 2 5. Hydrogen is 2, so it is balanced. So here what happens? अब यहाँ पे ये बेस है और यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बिहेव कर रहा है एज एन एसिड. ठीक है, अब आप जिंक के लिए भी लिख सकते हैं, जिंक ऑक्साइड के लिए ZnO, जिंक ऑक्साइड. इफ द जिंक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद HCl, क्या बनाएगा? ZnCl2 plus water. Okay, to make it balanced we will put here 2. Now when the zinc oxide react with the base, ठीक है, अब ये यहाँ एज अ एसिड बिहेव करेगा बेस के साथ. सो ये क्या बनाएगा? सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2, that is sodium zincate plus water. Again here the zincate is the sodium zincate is the ion. ठीक है, वो एक आयन है. So these are the two examples of amphoteric oxides. In the exam if the definition is asked, तब आप इसकी definition लिखोगे. अगर example के साथ पूछेगा तो आपको दोनों reactions लिखनी पड़ेंगी to explain with the help of reactions. ठीक है, example के साथ. Okay, so this is about their basic and amphoteric oxides. कि basic oxides होते हैं और कुछ amphoteric oxides हैं. The example is aluminium oxide and zinc oxide. The next property is solubility in water. ठीक है, most of the metal oxides are insoluble in water. Most of metal oxides are insoluble in water. That are insoluble in water, but few are soluble in water. कुछ metal oxides जो हैं that are soluble in water, and the example is of sodium oxide and potassium oxide. Okay, in metals के oxides जो हैं that are soluble in water,
एंड एज अभी हमने बात करी कि मेटल ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर होते हैं, एंड वी नो दैट जो बेसिस वाटर में सॉल्युबल होते हैं हम उनको क्या कहते हैं, अल्कलीज, दे आर नोन एज अल्कलीज। ठीक है, तो क्या होगा जब ये सोडियम ऑक्साइड वाटर में मिक्स करेगा H2O, देन इट विल फॉर्म NaOH। ओके, NaOH बनाएगा, तो ये क्या है, एक तरह से अल्कली है, इट इज अल्कली, सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज अल्कली। ओके, सेम विद द पोटाशियम ऑक्साइड, जब पोटाशियम ऑक्साइड करेगा it will get dissolved in water and it will form potassium hydroxide, and due to this reason only कि वो वाटर, इनके ऑक्साइड्स वाटर में सॉल्युबल हैं और वो अल्कलीज बनाते हैं, हम इन मेटल्स को अल्कली मेटल्स भी कहते हैं। ठीक है, सोडियम, पोटाशियम, लिथियम, दीज आर अल्कली मेटल्स। Okay, so in this way we have studied the reaction of metals with oxygen. And in your book students, after this topic, इस topic के बाद एक छोटा सा do you know box दिया हुआ है, that is about the anodizing. Okay, now see what is anodizing. Anodizing क्या है, is the process of coating a thick layer of aluminium oxide on the surface of aluminium articles. ठीक है, एज वी ऑल नो दैट क्या होता है, एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की कोटिंग आ जाती है। जो एल्यूमिनियम आर्टिकल्स होते हैं जब वो रिएक्ट करता है विद ऑक्सीजन तो सरफेस के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर आ जाती है, दैट प्रिवेंट्स द फर्दर करोजन ऑफ द मेटल। ठीक है, अब आप इसी ऑक्साइड लेयर को क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रोलिटिकली आप इसको और थिक बना सकते हो। सो व्हाट वी विल डू ड्यूरिंग द एनोडाइजिंग प्रोसेस, हम एक अपना इलेक्ट्रोलिटिक सेल अरेंज करते हैं, सेटअप रेडी करते हैं। ओके, इन विच वी विल टेक वन कैथोड दैट इज ऑफ, कैथोड किसको बना लेते हैं, लेड और एल्यूमिनियम को, किसी को भी बना लो। और एनोडाइजिंग हमने एनोड लेना है किसको, एल्यूमिनियम आर्टिकल को। ओके, नाउ अब आप इसको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ अटैच करोगे तो इट विल बिकम एनोड, एंड नेगेटिव के साथ जिसको आप अटैच करते हो दैट इज द कैथोड इलेक्ट्रोड। ओके, इलेक्ट्रोलाइट आप लेते हो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का। अब क्या होगा, ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट, जैसे ही करंट पास होगा इसमें से इट विल गेट डिकम्पोज होगा और ऑक्सीजन रिलीज जो होगी दैट कहाँ आ जाएगा, वो एनोड पे आएगी। ठीक है, एंड ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद दिस एल्यूमिनियम, इस एल्यूमिनियम के साथ वो रिएक्ट करती है और इसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग बना देती है। ठीक है, इट फॉर्म्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और ये प्रोसेस आप तब तक करते रहते हो जब तक आपको रिक्वायर्ड थिकनेस की एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर नहीं मिल जाती है। ओके, एंड द अनदर एडवांटेज ऑफ दिस प्रोसेस इज कि आप इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर को क्या कर सकते हो, डाई कर सकते हो टू गिव अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल अपीयरेंस टू द एल्यूमिनियम आर्टिकल्स। Okay, so this is about anodizing. So students, our next topic is reaction of non-metals with oxygen. Okay, so non-metals कैसे react करती हैं with oxygen? Non-metals when reacts with oxygen, they will form non-metal oxide. Okay, they will form non-metal oxide. Now these non-metallic oxides, जैसे मेटल ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर होते हैं वैसे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो हैं दैट मे बी एसिडिक इन नेचर और न्यूट्रल ऑक्साइड्स। ओके, सो फर्स्ट वी विल डिस्कस एसिडिक ऑक्साइड्स। एसिडिक ऑक्साइड्स, दोज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स दैट डिसॉल्व इन वाटर, जो वाटर में डिसॉल्व करते हैं और क्या बनाते हैं, एंड फॉर्म एसिड। ओके, एंड फॉर्म एसिड, उनको आप क्या कहते हैं, एसिडिक ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, द फर्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ कार्बन। अगर आप कार्बन को बर्न करते हो सो इट विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन इट्स अ नॉन मेटल। ओके, अब क्या करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, अब इसको ये शो करने के लिए कि ये एसिडिक इन नेचर है, हम क्या करेंगे, वी विल डिसॉल्व इट इन वाटर। इफ वी विल डिसॉल्व इट इन वाटर सो इट विल फॉर्म कार्बोनिक एसिड H2CO3. ओके, दिस इज कार्बोनिक
एसिड। ठीक है, और ये क्या करेगा, इट विल टर्न ब्लू लिटमस रेड। उसी से हमें पता चलेगा ना कि दिस इज द एसिड, क्या बना है यहाँ पे, एसिड बना है। सो हम क्या कह सकते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड इट्स एसिडिक इन नेचर। ठीक है, ये एसिडिक ऑक्साइड है। सेम आप अनदर एग्जांपल लिख सकते हैं विद द सल्फर। ओके, इफ वी विल बर्न सल्फर इट विल फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट विल फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, इट्स अ गैस, गैस ही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, गैस। इट्स अ नॉन मेटल एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अब इसको ये बताने के लिए कि दिस इज एसिडिक इन नेचर, आप इसको भी डिसॉल्व कर दो वाटर में, H2O, एंड इट विल क्या करेगा, ये एसिड बनाएगा, दैट इज H2SO3। दिस इज सल्फ्यूरस एसिड। और इसको भी कैसे टेस्ट करोगे, दिस इज सल्फ्यूरस एसिड, डिप ब्लू लिटमस, इट विल टर्न रेड, दैट शोज दिस इज एसिडिक इन नेचर, ये एसिडिक इन नेचर है। ठीक है, अगर बेटे अगर आप वाटर में इसको डिसॉल्व नहीं करोगे तो आप इस गैस को कैसे शो कर सकते हो कि दिस इज एसिडिक इन नेचर। आपको याद है, वी हैव डन इन द सेकेंड चैप्टर बाय ब्रिंगिंग द वेट लिटमस पेपर, है ना। लिटमस पेपर को, जो ब्लू लिटमस पेपर है उसको हल्का सा आप क्या कर दो, मॉइस्ट कर दो। ठीक है, वाटर, एक दो वाटर ड्रॉपलेट्स उसमें डाल दो एंड देन ब्रिंग इट नियर टू दिस गैस एंड द ब्लू litmus turns red. As we have studied in second chapter, the presence of water is essential for the separation of ions. ठीक है ना, तो उसमें एसिड बनेगा एंड इट विल टर्न रेड। ठीक है, सो these are acidic oxides. Other example आपका किसका है, नाइट्रोजन। When the nitrogen reacts with oxygen, it will form NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और इसको शो करने के लिए ये हम वैसे ही लिख रहे हैं, ठीक है, कि वाटर में ये क्या बनाएंगे, दे विल फॉर्म एसिड। ये बेटे आपने पढ़ा भी हुआ है, जब ये रिएक्ट करते हैं एसिड रेन, एसिड रेन आपने पढ़ा होएगा, है ना। तो एसिड रेन में क्या होता है, वी आर सेइंग कि दीज ऑटोमोबाइल्स से ये गैसेज रिलीज होती हैं एंड रिएक्ट विद द रेन वाटर एंड दे विल फॉर्म एसिड। तो दिस इज द एसिड। ठीक है, नाइट्रिक एसिड बन जाता है। सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एसिडिक ऑक्साइड। One more method is there, students, to show that these non-metallic oxides are acidic in nature. ठीक है, अगर आपको याद हो, we have discussed in chapter 2 when the non-metallic oxides react with base. Okay, for example, अगर आपको याद हो CO2 plus हमने की थी ये reaction with CaOH twice calcium hydroxide, it will form calcium carbonate plus water. ठीक है, क्या बना रहा है, सॉल्ट और वाटर एंड दिस बेस, सो हियर दे आर रिएक्टिंग और एक्टिंग एज एसिड। ठीक है, सो आप या तो उनको वाटर के साथ रिएक्ट करके चेक कर सकते हैं, दे आर एसिडिक इन नेचर, और विद द बेस दे विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। नाउ द नेक्स्ट इज द न्यूट्रल ऑक्साइड्स। व्हाट आर न्यूट्रल ऑक्साइड्स? दोज नॉन मेटल ऑक्साइड्स विच नीदर रिएक्ट विद एसिड्स नॉर विद बेसिस। ठीक है, ना वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं ना वो बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं, दैट आर कॉल्ड न्यूट्रल ऑक्साइड्स। ओके, द एग्जांपल्स आर कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर, नाइट्रिक ऑक्साइड दैट इज NO, नाइट्रस ऑक्साइड दैट इज N2O. This is all about today's session, and in next session we will discuss the rest of the chemical properties of metals and non-metals. Okay, revise this much only. Take care. Bye bye.